Psalm number 27, the Lord is my light and my salvation, of David, Psalm of David. This psalm also very famous. Mostly everyone will take this psalm and preach. है नहीं, बहुत प्रचार सुनते हैं. दादाजी शायद इस भजन संगीत से लगभग 5 से ज्यादा प्रचार किया. शाम दीपक भी किया. बहुत आसान है लेकर प्रचार करना, फिर भी लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट पता है. Psalm number 27 is one of the most beloved and frequently cited psalms in the Hebrew Bible. It is not only with us, even in the Hebrew Bible, this psalm is cited in many other places. I think this psalm is there even in the New Testament. It expresses profound trust in God amidst adversity, blending themes of confidence, fear, worship, divine protection. इस भजन संगीत में आप लोग क्या क्या दे सकता है? एक बड़ा मुसीबत के बीच में कॉन्फिडेंस की बात है, डर की बात है, आराधना की बात है, और डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए विनती करते हुए आप लोग देख सकता है. कौन कर रहा है? डेविड. ट्रेडिशनली attributed to King David, this psalm has inspired countless generations through its poetical articulation of faith and theological depth. जैसे मैंने बताया, बहुत सारा परंपराओं को, जनरेशन को इस भजन संगीत ने मदद किया जल्दी जल्दी प्रचार करने के लिए और जल्दी जल्दी समझने के लिए. This psalm structure, language and themes reveal a dynamic relationship between psalmist and God. So when you read this psalm, you can understand there is a good relationship between psalmist and God. So who is psalmist? David. No need to explain about anything. From the beginning itself I told, he understood God as his father and he understood I am his child and I have my inheritance with him. So I will speak everything boldly. Even if it is about my righteous living, I will tell him. At the same time, I have that respect within me. I will ask divine examination and divine protection. समझ नहीं आया? Maybe understood. So he speaks very openly with God. That's why in the beginning I told, in the previous class I told, a transparent life. In order to speak boldly, we should live in a transparent life. फॉर एग्जाम्पल, आपके जीवन में जो जो है मुझे अच्छा से पता है, तो आप लोग सीधा आकर बोलते थे मैं नहीं किया. वाई? यू आर वेरी श्योर दैट योर लाइफ इज ट्रांसपेरेंट बिफोर इवन योर फ्रेंड. मॉर्निंग कितने बजे उठा दीपक? 5? पक्का? इज देयर एनी अदर ऑब्जेक्शन? सो दिस इज व्हाट इट मींस ट्रांसपेरेंट लाइफ एंड स्पीकिंग बोल्डली. करेक्ट टाइम. डर लगा किसी ने रिजेक्शन करेगा करके? लगा था? सो दिस इज द सेम वे डेविड स्पीक्स इवन बिफोर गॉड. मैंने ये किया था, लेकिन गॉड इज अबव हिम. सो डिवाइन इंटरवेंशन. ऑथरशिप बिलोंग्स टू डेविड. स्कॉलर्स हैव प्रपोज्ड वेरियस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ साम नंबर 27. सो कॉन्टेक्स्ट फिर भी अलग अलग है. सम सेज First Samuel 19:26 related to King Saul. Some says Absalom. Second Samuel 15-18. कुछ लोग बताता है साउल का समय में हुआ, कुछ लोग बताता है अब्सलोम का. When David experienced betrayal and exile, संदर्भ ये था, लोग उनको धोखा दिया एंड भाग के जाना पड़ा. The Psalms reference to enemies warfare seeking God's presence in the temple support these interpretations. However, the Psalms' universal theme of faith and divine protection is the main historical event. Even though he is going through some kind of hardship, troublesome situation, he have that confidence. I have a God who will protect me if I ask him. So the psalm begins in this way. Read now that Psalm number 27 का पहला 2 वचन. The Lord is my light. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When evildoers assail me to eat up my flesh, my adversary and foe, it is they who tremble and fall. So from these 2-3 verses itself we can understand he was going through a kind of fearful situation.
he was going through all kind of this troublesome situation, then he is saying मैं किससे डरूं? और कॉन्टेक्चुअली बताया तो कभी कभी हमारे जीवन में कुछ होता है ना, कुछ होने के समय हम बोलते हैं अरे मैं डरता नहीं हूँ, अंदर तो डर है, फिर बाहर से बोलता है मैं डरता नहीं, चलेगा। सेम काइंड ऑफ सिचुएशन, क्योंकि दाऊद भी एक इंसान था, लोग उसके पीछे था, भाग रहा था, तब एक जगह पर बैठकर परमेश्वर का पुराना बातें याद करते हुए बोलता है, पुराना बातें क्या क्या याद किया होगा, इफ यू इमेजिन क्या क्या याद किया होगा। अरे शेर आया तो तब मैंने क्या किया, बालू आया तो उसको मैंने फाड़ दिया, बड़ा गोलियात आया तो मैंने, परमेश्वर मेरा साथ था, मैंने क्या कर दिया। ऐसा है तो रीड वर्स 1, ऐसा है तो वो सोच में रीड वर्स 1, then you will understand his feelings while he was praying this। इतना बातें सोचते हुए the Lord is my light and my salvation whom shall I। पुराना बात इतना पड़ा है मेरे जीवन में, अभी किससे डरूं, समझ आया नहीं आया। फॉर मी ये जो क्लास बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तक जितना भजन संगीत मैंने लेके मतलब क्लास लिया, बाइबल खोल के देखने से इसका कॉन्टेक्स्ट और वो दाऊद कैसा फीलिंग में लिखा वो तो समझ आ रहा है। कितने लोगों को समझ आ रहा है बातें। जनरली वी कैन प्रीच बोल्डली फ्रॉम साम, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम दिस साम ऐसा पढ़ेगा तो लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई साल्वेशन, हु इज माई लॉर्ड, और परमेश्वर कौन है हमारे लिए, लाइट है, वहां लिखा है। वो क्यों बोला दाऊद ने, वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसकी साथ आप इमोशन को जोड़ते हुए बताया तो लोगों को और समझ आएगा और अच्छे से गहराई से वो लोग भी याद रखेगा। देन लिटरेरी स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन, इसको कैसा विभाजन किया, कैसे लिखा। वर्सेस 1 to 6 कॉन्फिडेंस इन गॉड, वचन 1 से लेकर 6 तक द वर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट डेविड हैज इन गॉड। सेक्शन 2 petition and dependence, what is meant by petition, शंभू देवता क्या देना है। No, I told the word petition has a meaning in the life of David, I am asking about that, who can when you give petition you know ये देने से मेरे लिए फैसिलिटी है, वो मुझे देना है, because that is my right। So he is asking, he is putting a petition in front of God for, and he is showing I am dependent with God. What is mean dependence? Then theological themes, that is 7 to 14. Then theological themes, trust in God's protection. I am very sure, David is very sure, only who can protect him, God. Then he is very sure, if I desire to dwell in the presence of God, that is enough for my life. Then question, where you can find the presence of God? Where? Ever. In that sense, from this psalm we can give a good message. Even though you are going through suffering, pain, रोने का अवस्था में है, we can feel the presence of God in the midst of those things, because David was going through a kind of suffering, गुफा में था, मरुभूमि में था, रेगिस्तान में था, बट लेकिन he saying I will dwell in his presence। कोई जगह पर हमें वहां परमेश्वर का हुजूरी हम महसूस कर सकता है, सिर्फ आराधना का समय नहीं, मंदिर में नहीं, जो संदर्भ में मैं जी रहा हूं वहां से गुड मैसेज यू कैन सी गिव। द रियलिटी ऑफ फियर एंड फेथ, डर और विश्वास का सच्चाई बात क्या है उन्होंने एक्सप्लेन किया। Our fear should not overcome our faith. Our faith should overcome our fear. That is the message. Divine guidance and instruction. परमेश्वर की तरफ से अगुवाई मांग रहा है और मुझे कैसा चलना है परमेश्वर, आप मुझे इंस्ट्रक्शन देना करके भी पूछ रहा है। Point number 5, waiting on the Lord. Which means, after giving all these prayer requests, as well expressing all these feelings, he took a decision. Till the answer come, I will wait. There you can write, waiting is an act of faith. Waiting is an act of faith.
Literary devices used, parallelism, imagery. Parallelism मतलब where lines echo or contrast each other. दो अलग अलग वचन एक ही बातें होगा, नहीं तो पहली वचन और कुछ बातें होगा, दूसरी वचन उससे मिलते हुए और कुछ बातें होगा. फॉर एग्जाम्पल, द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई साल्वेशन, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. It is speaking about Lord, but in two different parallelism. ये परमेश्वर के बारे में बोल रहा है. पहला परमेश्वर कौन है करके बोला, लाइट एंड साल्वेशन. सेकंड वचन में क्या बोला, सेकंड पार्ट में क्या बोला, द लॉर्ड इज. दोनों एको है, दोनों एक ही है, परमेश्वर के बारे में ही बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर के कैरेक्टर के बारे में बोलने में अलग अलग बातें जोड़ के बोला. इसको क्या बोलता है, पैरेललिज्म. इमेजरी, लाइट, इसका मतलब ऐसा नहीं है वहां परमेश्वर गुफा में इनके लिए 100 वोल्ट का लाइट लगा के रखा. वो बोलने का एक तरीका है, वो अंधियारे में अवस्था में संदर्भ में मेरे लिए रोशनी के समान, द लॉर्ड वाज देयर एज माय लाइट. सो इट इज एन इमेजरी. रिपीटेशन, fear, seek, Lord, all these words are repeated in this psalm. Fear, seek, Lord. Emotional progression, one more new one. इसलिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन करते आया. What is mean by emotional progression? ये आपने किस बताओ. अपने जो भावना है उसको नियंत्रण करना चाहिए. दर्शन. भावना अपना That is emotion, expression. Here you can see emotional expression or progression. कुछ समय में होते हैं ना, छोटी आवाज में रोते 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 क्या हो जाता है, ये लड़की लोग रोते जाए, छोटी ई करके शुरू करेगा, हम कुछ पूछने से क्या हो जाएगा. सो इमोशन कैसे हो जाता है, इमोशन विल बी प्रोग्रेसिंग. एक लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फिफ्थ लेवल, फोर्थ लेवल, फिर कोई नहीं होगा. हमारा फिजिकली इमोशन का डीप लेवल है. रोने के बाद ये आता है ना, कभी रोया, रोने के बाद भी वो सांस लेने में दिक्कत, वो है हमारा इमोशन का पीक लेवल. एक कब होता है, कब होता है, कब होता है, डिप्रेशन में. डिप्रेशन में रोना नहीं आएगा. डिप्रेशन का ऐसा वाला एक अवस्था है, करना है नहीं कर पा रहा हूँ, करना नहीं है फिर भी करने का है. डिप्रेशन मीन्स ए कंफ्यूज सिचुएशन. ये होता है हमारा माँ बाप या हमारा भाई बहन किसी ने इस दुनिया से चले जाएगा, मतलब मरने का समय. द फीलिंग्स विच वी हैव इन आवर माइंड, क्योंकि कल सुबह वही घर का अंदर हम जीना है. क्योंकि मैं मेरा दोस्त के जीवन में देखा, वही घर पे, वही किचन में, वही बर्तन, वही बेड. आज सुबह 9 बजे मैंने पापा करके बुलाया होगा, कल सुबह 9 बजे बुलाने के लिए कौन नहीं है. वो एक संदर्भ होता है. तब आंसू नहीं आया तो भी इधर से लेकर इधर तक ऐसा लगेगा एक बड़ा पत्थर लेकर रखा है, सांस लेना नहीं होगा. बाद बीच बीच में वो क्या बोलते हैं, और सांस लेने का दिक्कत हो जाएगा. क्योंकि मैंने महसूस किया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. आप लोग किया होगा, जब ब्रेकअप हुआ था रोया था ना, ऐसे हुआ था. उस दिन रोया था ना लाइट मारते हुए, द लॉर्ड इज माई लाइट. डिप्रेशन इज इन अनदर लेवल. आपको रोना भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा कैरेक्टर मुझे रोकेगा. तो क्यों रोना है, रोना भी है, रोना भी नहीं होगा. करना भी है, करना नहीं होगा. करने के लिए हाथों में कुछ नहीं है. किसी को मदद पूछ रहे तो वो बोलेगा तुझको घर के फायदा भी नहीं है. डिप्रेशन इज एन अनदर लेवल. ऐसा हो जाता है, कुआं के अंदर गिराया है, पानी में है, ठंड भी लग रहा है, पानी पीना है, पानी नहीं पिया तो भी मर जाएगा, पिया तो भी मर जाएगा. उसके अंदर से बाहर आना मुश्किल है. डिड यू एक्सपीरियंस दैट डिप्रेशन? नहीं है. अच्छा हुआ. So here you can see in Psalm number 27, you can see the emotional progression of David. शुरुआत से लेकर अंत तक उनका इमोशन बढ़ते गया और बढ़ते गया.
theological significance. You can see in any kind of situation, the psalmist says, trust in the Lord with all confidence. Even though you are going through a dark situation in your life, trust in the Lord, have confidence, you will see the light. That's why he is saying, the Lord is my. So there is only one way. I will ask him, and he is the only light. According to Jewish interpretation, they use in a liturgical practice, they are recited daily during the month of Elul throughout the high holy days. ये यहूदी लोगों का समाज में ऐसा कुछ दिन है, पवित्र दिन के समान वो लोग मानता है. वो समय में इस भजन संगीत वो लोग हर दिन रिसाइट करता है. उसका नाम है एलूल, मंथ ऑफ एलूल. एलूल इज द 6th month of the Hebrew calendar. Hebrew calendar में 6 महीने 6th month है. A month of repentance and reflection that occurs अगस्त और सितंबर में होगा. ये पूरा बातों को कबूल करने का, रिपेंट करने का एक महीना है. तब इस भजन संगीता को गाता है. ओ हाई मतलब हम भी कर सकते हैं दिसंबर के लिए तैयार होने के लिए. इधर करता है ये लोग, ये ऑर्थोडॉक्स वाला लोग करता है. वो समय मांस नहीं खाता है, ओनली वेजिटेबल. I think I can get it. या 40 days समथिंग दे विल डू. बीच में चुप चुप के खाएगा वो अलग बात है. चुपके से खाते कुछ लोग करते हैं आज भी. आप लोग वहाँ तंबू का त्योहार करता है, सब पूरा कलिसिया मिलकर एक पहाड़ पे चला जाकर खाना पका के खा के वापस आता है. अब सुबह चिकन खाया, अभी दांत साफ कर रहे बैठ के. तोड़ दो उसको. So according to Jewish tradition, in the 6th month, Elul, they recite this psalm daily. लिख के रखो, काम आएगा. Jewish tradition, JT, 6th month, Elul, August, September, month of confession. According to Christian, they interpret this psalm in a Christological way, because where Jesus Christ told, I am the light. So we will connect easily with this by saying He is our light. इसी है हमारा, हम प्रचार करने का तरीका यही है, क्योंकि यीशु मसीह में लाइट करके बताया था, I am the light. So we will connect it with this and we will make a khichdi and we will preach. Psychological and spiritual dimension. Faith during the time of fear or confidence during the time of anxiety. ये दो सेंटेंस आपका ये साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन में आप लोग जोड़कर बता सकता है. दर्द या मुसीबत का बीच में एक कॉन्फिडेंस होता है, वो इस भजन संगीता हमें सिखाता है. क्योंकि whom shall I fear करके बोलना है तो किसी ने उनको डराया था. Somebody made him, tried to put him down. Then he is saying, मेरा परमेश्वर मेरे लिए था, मैं किससे डरूं. Now you understood psychological motto. Then you can compare this psalm with 23, 26, 42. 23, 26 and 42. This psalm also connected with Ayub. Ayub. Ayub chapter 42 verse 10. Ayub chapter 42 के 10 में क्या है? सब वापस मिलने का. Yes sir. Somebody चैप्टर 42 कनेक्ट नहीं होता क्योंकि वहां सब कुछ वापस मिला, इधर कुछ नहीं मिला. verses 1. Ayub verses 1 chapter 1 verse 1. 1 verse 1 में क्या लिखा है?
he lost everything for 1 verse 1 by. वो वहाँ से starting chapter 1. You can't connect with 1 verse 1. You can connect with the life of Ayub by saying, even though he lost everything, Yeah. he trusted in the Lord. That you can connect with almost all fellows from Bible. यूसुफ और कौन था? बच्चे वो क्यों पढ़ते? वो क्या खो गई? एक दिन नहाने से महल का अंदर जिंदगी मिल गया. So conclusion, ऊपर बोले हुए सारे बात है. Here also you can see a deep intimacy and relationship between God and David, where in the midst of all suffering, he speak very boldly in a confident way that God will protect him. The Lord is my salvation. The Lord is my light. Whom shall I fear? Full stop. संगे full stop. नहीं नहीं